Hello students, welcome to English grammar class. Our today's lesson is degrees of comparison. As our method is, first of all, to read the sentences and then to follow the rules or instructions. So as usual, first of all, we shall read a few sentences written on the board. Sentence 1, apples are sweet. Sentence 2, papayas are sweeter than apples. Sentence 3, mangoes are the sweetest of all. Now, in the first sentence, apples are sweet. Sweet is adjective, and the adjective sweet just tells us that apples are sweet. It does not tell us the adjective sweet does not tell us how much the quality of sweetness the apples have. Okay? Now in the second sentence, the adjective sweeter tells us that papayas have more quality of sweetness than apples have. And in sentence 3, the adjective sweetest tells us that mangoes have the highest degree or the greatest quantity of sweetness mangoes have. The word sweetest in sentence 3 tells us that the mangoes possess the greatest quantity of the quality of sweetness. Okay? So, the adjectives now, look in the three sentences, the adjectives have changed in their forms. In the first sentence, the adjective is sweet. In the second sentence, it becomes sweeter. And in the third sentence, it becomes sweetest. Sweeter becomes by adding er to sweet. And sweetest becomes by adding est to sweet. Now, the first sentence, apples are sweet. Here, the adjective sweet is said to be in the positive degree. The adjective sweet is said to be in the positive degree. And the adjective sweeter in the second sentence is said to be in the comparative degree. And in the third sentence, the adjective sweetest is said to be in the superlative degree. So we have three kinds of degrees of comparison: the positive degree, the comparative degree, and the superlative degree. You can identify an adjective to be in the comparative degree by seeing that the adjective ends in er. You can identify an adjective to be in the superlative degree by looking at adjective ending in est. And the adjective either without er or without est is said to be in the positive degree. Okay? Now, the second thing to remember is that the adjective is in the comparative degree when two things or two persons are compared. For example, in the second sentence, papayas are compared to apples. Papayas are compared to apples. There are two fruits. On one hand papayas
and on the other hand fruit, on the other hand apples. There are two kinds of fruits, papayas and apples. And what is being compared? The quality of sweetness. So when two things or two persons are compared to one another, they are said to be in the comparative degree. Now here, mangoes are the sweetest of all. Mangoes are the sweetest of all. All means apples and papayas. So here, the quality of sweetness is compared between or among more than two fruits. Here, quality of sweetness is compared among more than two fruits, apples and papayas, more than two things. When a quality is compared more than two things, they are said to be in the superlative degree. And in the positive degree, always remember, there is no comparison. In the positive degree, there is no comparison. Apples are sweet. It is in the positive degree. In the first sentence, no comparison is made at all. So this point is to be remembered. So a sentence is said to be in the positive degree when the adjective is in its first form without any change. A sentence is said to be in the comparative degree when an adjective ends in er, and a sentence is said to be in the superlative degree when an adjective ends in est. So these are about the degrees of comparison: positive degree, comparative degree and superlative degree. Now we shall learn one by one about positive degree, comparative degree and superlative degree. First of all, we shall learn about the positive degree. अब हम लोग सीखेंगे कि एक सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में किसी सेंटेंस को लिखने का क्या रूल है। रूल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि सबसे पहले जो एडजेक्टिव होगा उसको दो एज के बीच में हम लोग रखेंगे। द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिटवीन एज मीन्स दो एज के बीच में हम एडजेक्टिव को रखेंगे। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द पॉजिटिव डिग्री। हम पहले बता चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन अगर two persons or two things have the same degree of quality of an adjective, then how should we express? For example, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है the lion and the tiger are equally the strong animals। मतलब लायन और टाइगर दोनों ही जानवर जो है इक्वली स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो उसका तरीका ऐसे है, लिखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लायन इज एज स्ट्रांग एज द टाइगर। जो एडजेक्टिव है उसको हम लोग क्या करेंगे, डबल एस के बीच में हम रखेंगे। यहां पर एडजेक्टिव क्या है, स्ट्रांग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एज स्ट्रांग एज। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीका से हम बोल सकते हैं। पहला, द लायन इज एज स्ट्रांग एज द टाइगर, और द टाइगर इज एज स्ट्रांग एज द लायन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, express the following statements in the positive degree. Darjeeling and Nainital are equally cold places. अब यहां पर क्या है, दार्जिलिंग और नैनीताल दोनों का एडजेक्टिव क्या है, कोल्ड है। बोथ आर कोल्ड प्लेसेस एंड बोथ आर सेम। तो दोनों का यहां पर एडजेक्टिव जो कोल्ड है वो सेम है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे पॉजिटिव डिग्री में?
दार्जिलिंग इज एज कोल्ड एज नैनीताल, और नैनीताल इज एज कोल्ड एज दार्जिलिंग। यहां पर जो कोल्ड एडजेक्टिव है उसको दो एज के बीच में हम प्लेस कर दिए हैं, और इस सेंटेंस को दोनों ही तरफ से लिखा जा सकता है, इसलिए कि दोनों ही जो प्लेसेस जो है कोल्ड है। अब देखिए एग्जाम्पल 3, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री आर इक्वली डिफिकल्ट। ठीक है, यहां पर जो एडजेक्टिव है वो है डिफिकल्ट, और ये एडजेक्टिव जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही में क्या है, सेम है। तो कैसे लिखेंगे, जियोमेट्री इज एज डिफिकल्ट एज ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री इज एज डिफिकल्ट एज जियोमेट्री। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द पॉजिटिव डिग्री। अशोका एंड अकबर वेयर इक्वली द ग्रेट किंग्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इस दोनों इस स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे लिखेंगे, अशोका वॉज एज ग्रेट एज अकबर, और अकबर वॉज एज ग्रेट एज अशोका। सॉरी, यहां पर स्पेलिंग भूल हो गया है इसको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, हिटलर एंड जेंगिस खान वेयर इक्वली क्रूअल रूलर्स। ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव क्या है, क्रूएल है। तो कैसे लिखे हैं, आंसर इसका क्या होगा, कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको पॉजिटिव डिग्री में, हिटलर वॉज एज क्रूएल एज जेंगिस खान, और जेंगिस खान वॉज एज क्रूएल एज हिटलर। एडजेक्टिव क्रूएल को हम दो एज के बीच में प्लेस कर दिए हैं। नंबर 6, द काउ एंड द गोट आर इक्वली यूजफुल एनिमल्स। अब देखिए यहां पर एडजेक्टिव क्या है, यूजफुल। तो कैसे एक्सप्रेस किए इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में, द काउ इज एज यूजफुल एज द गोट, और द गोट इज एज यूजफुल एज द काउ। Express the following statements in the positive degree. Oranges and sweet lemons, Mosambhi, are equally the juicy fruits. इसका आंसर हो गया, oranges are as juicy as sweet lemons. दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, sweet lemons are as juicy as oranges. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, a 10 rupee note and a piece of paper are equally light. ठीक है, मैंने 10 रुपये का नोट और एक कागज का टुकड़ा दोनों ही एक जैसा हल्का होता है। इसको कैसे एक्सप्रेस किए हैं पॉजिटिव डिग्री में, a 10 rupee note is as light as a piece of paper, or a piece of paper is as light as a 10 rupee note. Example number 9, Gandhiji and Nelson Mandela were equally the noble persons. ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव है द नोबल। आंसर होगा इसका, गांधी जी वॉज एज नोबल एज नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला वॉज एज नोबल एज गांधी जी। नाउ द लास्ट सेंटेंस, स्मोकिंग एंड वाइन ड्रिंकिंग आर इक्वली इंजूरियस। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, स्मोकिंग इज as injurious as wine drinking, or wine drinking is as
इंजूरियस एज स्मोकिंग। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट, वेट एंड द एज ऑफ द फॉलोइंग बॉयज। यहां पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 3 लड़के हैं बॉयज में, शादाब, इमरान और एजाज। उसके हाइट, उसका एक कॉलम में हाइट दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में वेट दिया हुआ है और तीसरे कॉलम में उसका एज दिया हुआ है। अब इन तीनों को हम जो है कंपेयर करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। सबसे पहले 1 नंबर में देखिए कि शादाब एंड एजाज हैव द सेम हाइट। शादाब का भी हाइट 6 फुट 7 इंच है और एजाज इज ऑल्सो ऑफ 6 फुट एंड 7 इंच। So we can express their heights in the positive degree in this way. अब शादाब और एजाज का दोनों का हाइट 6 फुट 7 इंच है, 6 फुट 7 इंच है। तो कैसे इसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे? तो हम लोग इसके एक्सप्रेस इस तरह से करेंगे कि शादाब इज एज टॉल एज एजाज। हाइट के लिए हम लोग एडजेक्टिव टॉल यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से डबल एज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और एडजेक्टिव टॉल को बीच में रख देंगे, एज टॉल एज। तो हो गया शादाब इज एज टॉल एज एजाज। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एजाज इज एज टॉल एज शादाब, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि हाउ शादाब एंड एजाज हु हैव द सेम हाइट, हाउ दे आर टू बी एक्सप्रेस्ड इन द पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि शादाब इज एज टॉल एज एजाज और एजाज इज एज टॉल एज शादाब। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि शादाब एंड इमरान हैव द सेम वेट। अब ये शादाब का वेट 65 kg है, इमरान का भी वेट 65 kg है। तो अब इन दोनों को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे पॉजिटिव डिग्री में? तो उसका तरीका है शादाब वेज, यहां पर वेज जो है वर्ब, इसको हम बना दिए हैं शादाब वेज एज मच एज इमरान। क्योंकि वेट है इसलिए यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग यहां पर मच का इस्तेमाल किए हैं। अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम लोग मेनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो शादाब वेज एज मच एज इमरान, ठीक है। या दूसरे ढंग से इमरान वेज एज मच एज शादाब। तो ये था वेट को लेकर, माने पॉजिटिव डिग्री में, माने अगर 2 पर्सन का सेम वेट है तो हाउ दैट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द पॉजिटिव डिग्री। अब इसी तरह से हम लोग जो है देखेंगे इसमें अब यहां पर देखिए इमरान और एजाज हैव द सेम एज। इमरान का भी एज 17 ईयर्स है और एजाज का भी एज 17 ईयर्स है। सो वी कैन एक्सप्रेस देयर एजेस, हम उन दोनों के उम्र को इन द पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एज के लिए हम लोग जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो होता है ओल्ड, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इमरान इज एज ओल्ड एज एजाज। इमरान एंड एजाज बोथ हैव द सेम एज, इसलिए एज के लिए हम लोग जो एडजेक्टिव यूज करेंगे वो होता है ओल्ड। तो इमरान इज एज ओल्ड एज एजाज और एजाज इज एज ओल्ड एज इमरान। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से किसी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये था आज का लेसन हमारा पॉजिटिव डिग्री में। हमको उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग कॉम्पैरेटिव डिग्री को लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।